السلام علیکم خواتین اور حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، شو کا آغاز کر رہے ہیں پاکستانی سیاست کے اس وقت سب سے گرما گرم سیاستدان محترم جناب مولانا فضل الرحمان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تعریف کا بہت شکریہ، لیکن گلہ وہی موجود ہے۔ کیا گلہ اس بات کا ہے جنید صاحب کہ آپ کے پروگرام کا نام ہے حسب حال۔ جی یعنی آپ حال کی بات کرنا چاہتے ہیں جی، اور آپ فضل الرحمان کو 4 5 5 6 ہفتے کے بعد بلاتے ہیں۔ واللہ آپ کی مصروفیات آڑے آتی ہیں، ورنہ یہ ہمارا بس یہ چلے۔ بات نہیں کرو، دیکھو یہ بات نہ کرو کہ وہ کیا کہتے ہیں شلجم کے اوپر سے مٹی اتارنا۔ یہ نہیں کرو۔ بات یہ ہے کہ یہ ہے حسب حال، جی جی، اور حال میں فضل الرحمان کے بغیر گفتگو ایسے ہی ہے جیسے مٹن کڑھائی میں مٹن نہ ہو۔ مار دیتا تھا مولانا صاحب۔ اب اس میں آپ اور جو مرضی ڈال لیں، اگر مٹن کڑھائی میں مٹن ہی نہیں ہے تو اس کو مٹن کڑھائی کہا ہی نہیں جا سکتا۔ بالکل۔ اسی طرح حسب حال میں اگر فضل الرحمان نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ حسب حال یا حسب ماضی کر لے یا حسب مستقبل کر لے۔ تو دوسری بات یہ تو گلا تھا جو اپنی جگہ پہ موجود تھا اور میں نے آپ کو وہ ضرور پہنچانا تھا۔ بالکل صحیح۔ دوسری بات جو میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ آپ کا پروگرام پی ڈی ایم کے تمام ممبران بھی دیکھتے ہیں اور حکمران بھی دیکھتے ہیں، جی جی، میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کے تمام ممبران کو یہ پیغام دیا جائے کہ خدا کے واسطے عمران خان سے لڑنا ہے، آپس میں نہیں لڑنا۔ واللہ آپ ان کے قائد ہیں، آپ ان کو سمجھائیں نا۔ ان کا حالت جلید ان بچوں والی ہے جو ناہنجار اولاد ہوتی ہے نا، ان کو باپ 2 گھنٹے لیکچر دے کے باہر نکلتا ہے جی اور پیچھے سے وہ اسی طرح اودم بچا دیتے ہیں، ایک دوسرے کے دستے گریباں ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دستوں گریباں عمران خان کے ساتھ ہونا ہے، آپس میں نہیں ہونا۔ بالکل صحیح۔ یہ میں چاہتا تھا کہ آپ کے پلیٹ فارم سے یہ پیغام بھی دے۔ مولانا آپ بھی تو پی ڈی ایم کے قائدین کے بارے میں بہت سخت زبان استعمال کر رہے ہیں نا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کے جو اکثر قائدین ہیں وہ کرتے کراتے کچھ نہیں ہیں، گلاس توڑا باراننے والی حالت ہے کہ وہ صرف باتیں زیادہ کرتے ہیں، کام کم کرتے ہیں۔ دیکھیں پی ڈی ایم کا اصل مقصد کیا ہے؟ جی جی، پی ڈی ایم کا اصل مقصد جو ہے صرف عمرانی حکومت کا خاتمہ، عمرانی اور کچھ اس کا مقصد نہیں۔ اب یہ لوگ سارے جو ہیں جتنے بھی پی ڈی ایم کے ممبران ہیں، جی جی، یہ اپنا اپنا راگ الاپ رہے ہیں۔ وہ بندہ خدا صرف ایک راگ الاپ لائے جو پی ڈی ایم کا راگ ہے۔ جب حلیم بن جاتی ہے جی جی، تو اس میں دال کا علیحدہ کوئی میرا خیال ہے کہ سٹیٹس نہیں رہ جاتا، نہ ہی گوشت کا کوئی وجود رہتا ہے، جی جی، مٹن ہو یا بیف ہو، نہ ہی گرم مسالے کا کوئی اس میں مولانا کی علیحدہ۔ مثالیں بھی دیکھیں۔ میں کہتا ہوں کیا بات ختم ہے۔ ہے، مثالیں دار دیکھیں ہے۔ اس وقت جب تیار ہو جاتی ہے وقفہ کر لیں، کھانے کا وقفہ کر لیں۔ دیکھیے ابھی انشاءاللہ وہ بھی ہوگا۔ جب حلیم تیار ہو جاتی ہے تو وہ صرف حلیم ہوتی ہے، وہ دال یا بیف یا مٹن یا گرم مسالہ یا نمک مرچ نہیں رہتی۔ جی جی، اسی طرح جب پی ڈی ایم بن گئی ہے تو پھر نون لیگ یا پیپلز پارٹی یا پی این یا کچھ بھی ہوئے یار، وہ پھر وہ نہیں رہتی، وہ پھر صرف پی ڈی ایم ہے، اور پی ڈی ایم کا سربراہ ہے مولانا فضل الرحمان۔ اچھا مولانا، آپ ظاہر ہے اتنے بڑے پاکستان کے سیاسی رہنما ہیں، ایک مدبر شخصیت ہے، تو سیاست کے حوالے سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ حلیم کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ یکجان ہو جاتے ہیں، تو حلوے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اب میری سیٹ کا خیال کری، میں نان پھڑ کے لیا۔ صبر کریے یعنی اس طرح کا جاہل جو خوراک والا ہوتا ہے نا، وہ سارے مزے کو کیر کرا کرتے ہیں۔ یعنی ذکر ہوا ہے حلوے کا، جی جی، اور حلوے کے ساتھ وہ نان کھاتا ہے جس کو حلوہ ملتا ہی بہت توڑا ہے۔ وہ بندہ خدا صرف حلوہ آگے رکھو، ڈش بڑی کرو ذرا، اور صرف حلوے کا مزہ لو، اس میں نان کہاں کو سیڑ رہے۔
साथ हलीम भी नान चने वास्ते रख ला हलीम भी बेटा सिर्फ उस वक्त नान के साथ खाई जाती है जब होती थोड़ी है। अगर हलीम इतनी हो कि उसके साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह पेट भर जाए। अच्छा मौला ये फरमाएं, छोड़े हलवे को हलीमों को, ये फरमाएं कि आप किस बुनियाद पे इतने तयक्कुन के साथ ये दावा कर रहे हैं कि इमरान हुकूमत को दिसंबर देखना नसीब नहीं होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सबसे पहली बात तो ये है जी कि हमें भी इसको खत्म करने की जरूरत नहीं है आप। ये तो खुद अपनी मौत खुद मर रहे हैं। हमें भी अब मेरा ख्याल है कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म के ऊपर ना आवाज उठाने की जरूरत अच्छा न कोशिश करने की जरूरत है। मौजूदा हुकूमत जो है, इमरानी हुकूमत जिसको मैं कहता हूँ, वो खुद इमरानियात के मलबे तले आके दब जाए। अच्छा मौला फर्ज करें कि ये हुकूमत आपके एहतजाज के नतीजे में चली जाती है, तो उसके बाद का लाया अमल क्या होगा? इस पे भी आपने कुछ गौर किए? हाँ देखिए लाया अमल तो सारा आपके लोगों के सामने, जी क्योंकि ये पीडीएम की जिद्दोजहद के नतीजे में जाएगी हुकूमत, इसलिए फिर पीडीएम का जो सरबराह होगा वही फिर पाकिस्तान का भी मौला एक तरफ देखें, आप पीडीएम के कायद की हैसियत से बार बार तवत्तुर के साथ इस बात पे जोर दे रहे हैं कि मुल्क में इजहार राय की आज़ादी नहीं है, कदगनें लगाई गई हैं। दूसरी तरफ आपके अपने इंतहाई मोतबर रहनुमा जो आपकी पार्टी के तर्जुमान हैं, हाफिज हुसैन अहमद साहब, उन्होंने एक बयान दिया है कि जी पीडीएम में पता चल जाएगा कौन सीरियस है और कौन नॉन सीरियस है। मौलाना फजलुर रहमान साहब को सारी पीडीएम जो है अपने इस्तीफे पेश कर दे। आपने बजाय उनकी तजवीज़ सुनने के या अमल करने के, आपने खुद हाफिज हुसैन अहमद को उनके ओहदे से हटा दिया। देखिए हमने 50 दफा ये बात कही है कि बात सीधी करो, मगर हाफिज साहब को ये चाहिए कि इतनी भी सीधी न करो। हाफिज हुसैन अहमद साहब तो बिल्कुल ही सीधे हो जाते हैं। देखिए जो सियासत होती है ना, उसमें सियासत के साथ ही खेलना पड़ता है। उसमें अगर आप जज्बाती हो जाएंगे हाँ तो फिर उसका नाम सियासत रहता ही नहीं। सियासत नाम ही इस चीज का है कि अक्लमंदी के साथ खेला जाए, जज्बात के साथ नहीं खेला। इसमें जज्बात नहीं होते हैं। जज्बात नहीं होते। हाँ जज्बात सियासत में नहीं, जज्बात तो सिर्फ बहार बेगम की फिल्मों में होते थे। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अब किसी भी गैर महरम औरत का नाम लेना क्या सुनना भी पसंद नहीं करते, और वो भी फिर एक खूबसूरत खातून। और मेरा मतलब है कि जाहिर है अगर फिल्म स्टार बता रहे हैं तो वो खूबसूरत ही होगी ना जो फिल्मों में आ गई। देखिए हम इस तरह किसी भी खातून का नाम नहीं लेना चाहते, हम सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि कोई जरूरत नहीं है इतना जज्बाती होने की। जी जी भाई आप खुदा के वास्ते समझदार बीवी की तरह की बात करें, किसी का नाम लेने की क्या जरूरत है। एक बात चल रही थी एस्टेब्लिशमेंट। जी जी एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल उसी तरह है जैसे समझदार बीवी अपने खावत का नाम नहीं लेती, उसको उन हो कह देती। ये एस्टेब्लिशमेंट जो है ये उन हो है। पहले आप इसलिए एस्टेब्लिशमेंट को मुन्ने के अब्बा कहा करते थे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जैसे मुन्ने के अब्बा कह सकते हैं, उन्होंने कह सकते हैं, सुनिए कह सकते हैं, सुनिए, तो वो सुन लेते हैं ना, बात उन तक पहुंच जाती है तो इसीलिए वो आते हैं। अच्छा मौलाना मैंने देखा कि बीवियां बहरे शौहरों को भी कह रही होती हैं सुनिए, वो बहरा होता है। अरे भाई जब वो कहती है ना सुनिए, तो उनकी आंखों में वो वाली चमक होती है जो खुद सुनिए का मैसेज दे रही होती है। तो खामन जो होता है बहरा तो हुआ, अंधा तो नहीं है ना। इसलिए हमारा अपना ये ख्याल है कि आप बजाय किसी का नाम ले लेके, किसी महकमे को पॉइंट आउट करने के, नाम लेके आप सुनिए या मुन्ने के अब्बा या अजी आइए इधर, या इस तरह की चीजों से आप काम ले सकते हैं। कोई जरूरी नहीं होता कि आप नाम लेके तो बाकायदा ये बताएं कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी तो बात जो है वो
सियासत में सियासत के असूलों से ही होनी चाहिए। जी मौलाना, ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, मैं आपको वजीर आजम की सीट पे देखना चाहता हूँ। इंशाल्लाह देखोगे, गली अगर बंद भी हुई तो तुम पाइप में से गुजर जाओ। बस ये ख्याल रखना कि कोई मन चला पाइप के दोनों तरफ हाथ रख के तुम्हारा सांस न बंद कर दे। सांस चलता रहेगा तो इंशाल्लाह तुम एक दिन देखोगे कि पाकिस्तान का वजीर आजम फजल रहमान है। इंशाल्लाह। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यकीन करो कि जब इंसान गिलगित और बल्तिस्तान के बाज इलाकों में जाता है, यानी एक ही जगह पे इतने से छोटे एरिया में इतनी खूबसूरत झीलें दुनिया के किसी एरिया में नहीं है। अच्छा भाईजान, परसों दुनिया के खूबसूरत तरीन इलाके में, खूबसूरत तरीन अगर नहीं कोई इत्तेफाक करता मेरी बात से, वैसे मेरी नज़र में तो वो दुनिया का खूबसूरत तरीन इलाका ही है, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग कहें नहीं जी खूबसूरत तरीन नहीं है और भी खूबसूरत है, तो वो किसी और को भी पूछ लेंगे, तेन की तेरे भाभी नहीं ना दसिया हो। क्योंकि भाभी की बात को तो तुम हरफे आखिर समझते हो। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, और वो है गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान परसों जमहूरी अमल से गुजरेगा वो इलाका, और तीसरा इलेक्शन है जो वहां पे हो रहा है। तो वो मैं कहता हूं कि जहां पे बाज मुल्क कहते हैं कि जी दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, तो ये कहना चाहिए कि दुनिया की सबसे खूबसूरत जमहूरियत वहां पे, और उम्मीद की जानी चाहिए कि ये खूबसूरत जमहूरी अमल जो है ये खूबसूरती से ही पाया तकमील को पहुंचेगा। अभी तक तो वहाँ मतलब अच्छी खबरें हैं, ऐसा कोई वहाँ पे वाकया सुनने देखने को नहीं मिला। और जहाँ तक इंतखाबी नताइज का मामला है, तो जो पब्लिक ओपिनियन पोल्स हैं वो ये है कि अभी तक पीटीआई जो है वो लीड कर रही है, दूसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी है, तीसरे नंबर पे नून लीग है। अच्छा, कुछ हमने वैसे अपने तहीं भी पता किया है, लेकिन वो ये नहीं रेशो में फर्क आ रहा है, लेकिन तरतीब कमोबेश यही है। और दूसरी बात यह है कि अगर माजी के 2 इलेक्शन भी देखे जाएं तो जिस पार्टी की वफाक में हुकूमत होती है वही वहां पे ना सिर्फ इलेक्शन जीत जाती है बल्कि तकरीबन क्लीन स्वीप ही कर जाती है। 2009 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो 33 में से नून लीग की जो सीटें थी वो सिर्फ 2 थीं, और उनकी 20 के लगभग थी पीपल्स पार्टी जब मेहदी साहब जो थे वो सीएम बने थे। फिर उसके बाद 2015 में जब नून लीग की हुकूमत थी तो पीपल्स पार्टी की जो सीटें थी वो सिर्फ गालबन 1 सीट थी। एक सीट पीपल्स पार्टी वही जो पहले डिग्गी लंबी होनी है। तो अब भी सिर्फ तरतीब का या रेशो का फर्क बताया जा रहा है, लेकिन चूंकि पीटीआई की गवर्नमेंट है। और दूसरी बात यह है कि ये 2 इलाकों में है ना, एक गिलगित है और एक बल्तिस्तान है। बल्तिस्तान की जो सीटें हैं ये आमतौर पे वफाक के साथ जाती हैं, गिलगित में थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क पड़ता है। अच्छा, इस दफा सुनने में आ रहा है खूबसूरती ये होगी कि दोनों बार इलेक्शन में बदअहदी की गई है, जो इसका आईनी स्टेटस था उसके हवाले से भी और तरक्याती कामों के हवाले से भी। लेकिन इस बार और होता यह था कि इंतखाबी मुहिम के दौरान भी इन जमातों के दरमियान एक यकसुई नहीं पाई जाती थी, या प्रायोरिटी नंबर 1 नहीं होता था इनका आईनी स्टेटस। इस दफा कमोबेश सारी जमातें ही ये दावा लेकर मैदान में उतरी हैं और कोई फर्क नहीं है, ज्यादा मौकफ में फर्क नहीं है। इसलिए मेरा ख्याल है कि इस दफा जो होगा इंशाल्लाह ताला जो भी होगा, एक तो तरक्याती कामों पे तवज्जो देनी पड़ेगी, और दूसरा फिर ये होगा कि इसका जो आईनी स्टेटस का वायदा किया जा रहा है वो पूरा करना पड़ेगा। अच्छा, ये इसलिए भी जरूरी है यहाँ पे जमहूरियत की खूबसूरती बरकरार रखना कि ये आने वाले वक्तों में दुनिया भर की तवज्जो का मरकज बनने जा रही है। अच्छा, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानी की हैसियत से पाकिस्तान के चप्पे चप्पे से हमें प्यार है, लेकिन यकीन करो कि जब इंसान गिलगित और बल्तिस्तान के बाज इलाकों में जाता है, यानी दुनिया की एक ही जगह पे इतने से छोटे एरिया में इतनी खूबसूरत झीलें दुनिया के किसी एरिया में नहीं है। शायद किसी एक आध मुल्क में हो तो हो, लेकिन सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में मेरा ख्याल है गिलगित और बल्तिस्तान के इलाके में 19 के करीब खूबसूरत 3 झीलें मौजूद। क्या बात है यार, फिर ये कोई वो झीलें नहीं है जिन्हें मजा ना नहीं आती है। गोगा जी, ये साफ सुथरी और बाकायदा एक लुक दे रही होती है, ऐसी ब्यूटी। जैसे ही कहा है वो झीलें नहीं है जितने मजा ना आती है। गोगा ने कहा मैं की करना फिर जाके, उधर तो पानी बड़ा ठंडा है। आप यकीन करो
کہ جب آپ اپر کچورا لیک پہ جاتے ہو, جو شنگریلا لیک جس کو کہتے ہیں, اس سے اوپر ایک یہ لوئر کچورا ہے اسکردو کے علاقے میں, اوپر اپر کچورا ہے. جب آپ اپر کچورا میں تھوڑا سا سفر طے کر کے اوپر جاتے ہو اور جب آپ کی نظر پڑتی ہے اپر کچورا کی لیک پہ, یقین کرو کہ منہ سے نکلتا ہے کہ یہاں پہ یقیناً رات کے وقت پریاں اترتی ہوں. باقاعدہ ایک سحر طاری ہو جاتا ہے طبیعت پہ. واقعی بہت ہی پیارا خوبصورت علاقہ اور پھلوں سے لدا ہوا. خاص طور پہ خوبانی کی بات بتاتا ہوں, صرف گلگت بلتستان کے علاقے میں 30 قسم کی خوبانیاں پائی جاتی ہیں. مجھے 2 مرلہ جگہ لے دے ماں, کیا خوبانی پیدا کرنی ہے؟ نہیں رہنے کے لیے. اچھا, میں نے کہا پتہ نہیں خوبانی اگانی ہے تم نے. بڑی بڑی پیاری خوبانی, اور وہ جو سرخ پنک رنگ کی خوبانی ہے نا جی, وہ اور ایسے گر رہی ہوتی ہیں. چیریز وہاں پہ جب چیریز, سیب, ہر قسم کا بہترین سیب, کمال کا علاقہ ہے. ذاتی طور پہ میں بتاؤں, اگر میں ملک سے باہر ہوں نا تو میرا جو ملک سے باہر رہنے کا زیادہ سے زیادہ سٹیمنا ہے نا وہ 5 یا 6 دن کا ہے. یعنی اس ملک کی پتہ نہیں جو مرضی کہہ لیں, اس ملک کی محبت کہہ لیں, جو مرضی ہے, اس کی فضا میں ایک کشش ہے, مجھے تو وہ کھینچتی ہے 5 یا, اور اگر ملک کے اندر ہوں میں تو 7 دن. لیکن اسکردو پاکستان کا وہ واحد علاقہ ہے جہاں پہ میں 7-8 دن کے لیے گیا تھا, لیکن میرا جی یہ چاہتا تھا کہ 4-5 دن کم از کم اور یہاں پر. اس کی بلا وجہ کیا ہے؟ کیا سر؟ وجہ یہ ہے کہ جب باہر کے ملک میں تم جاتے ہو تو 5-6 دن میں اس لیے فوراً ناک آ جاتے ہو کہ وہاں پریاں اتر چکی ہیں. بلکہ پریاں جس طرح پھیر رہی ہوتی ہیں بندے نے غصہ چڑھ جاتا ہے. تو یہ جو علاقہ ہے اس میں تو ایک خیال ہے نا کہ شاید پریاں اترتی ہوں گی. اور باہر جو ہے وہ ہر پری کے ساتھ ایک جن بھی ہوتا ہے, گورا جن ہوتا ہے. اور ادھر بندہ امید میں بیٹھا رہتا ہے کہ یار دیکھ کے چلیں گے پریاں اترتی ہوں گی. یار بندہ نہیں کہتا مری یار تھوڑے 1 دن اور رک جاؤ, برف باری ہو جائے گی. گوگا جی بھی پریاں ویکھن گئے نے, انہاں نوں ایک جن نے پھڑ لیا تے پھر وہ جن نوں کہہ رہے نے میں تے بھراوا صدقہ سٹن آیا. سیریسلی. دوسری جو وہاں کا سب سے خوبصورت فیچر ہے گلگت بلتستان کا, وہ وہاں کے لوگوں کی مہمان نوازی اور ایمانداری ہے. وہاں کے لوگوں اور ایٹیچیوڈ, جی پڑھے لکھے لوگ ہیں, زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں بھائی, مگر جو بیسک چیزیں کر رہے ہیں نا بچے وہ بھی انتہائی تمیز والے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ٹورسٹ کی عزت کرتے ہیں بہت زیادہ. جیسے مری کے بارے میں عام طور پہ ہمیں شکایت, ہر سال کوئی نہ کوئی ایسے بعد مری کے لوگوں پہ یہ الزام لگتا ہے, اور سماج کے لوگوں پہ بھی کسی حد تک یہ لگتا ہے کہ جناب یہ ٹورسٹ کو ویلکم نہیں کرتے, ان کا ایٹیٹیوڈ پازیٹیو نہیں ہوتا. لیکن گلگت بلتستان کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی باڈی لینگویج سے لگتا ہے کہ وہ آپ کو ویلکم کر رہے ہیں. تو مجھے یاد ہے وہ شگر کے بازار میں میں نکلا, مغرب کی نماز ہونے والی تھی, تو مجھے کسی چیز کی ضرورت تھی, تو اس بندے کے پاس نہیں تھی, دکاندار کے پاس. وہ اپنی دکان کھلی چھوڑ کے میرے لیے وہ چیز کہیں اور سے ارینج کرنے کے لیے چلا گیا. دکانیں تو وہاں پہ ایسے کھلی چھوڑ دیتے ہیں جیسے سعودی عرب میں نہیں, دکانیں کھلی چھوڑ کے نماز کے لیے چلے جاتے ہیں, کیونکہ ایمانداری بھی وہاں پہ موجود ہے. ایجوکیشن ہے نا جی, یہ آغا خان جو ہیں انہوں نے وہاں پہ بے شمار تعلیم کا بندوبست کیا ہوا ہے اور ہر بچے کے لیے تعلیم لازمی قرار دی. دوسری بات یہ جو گلگت اور بلتستان کو دوسرے پہاڑی علاقوں سے ممتاز کرتی ہے, یہاں پر کئی خونخوار جنگلی جو جانور ہیں صرف انہی ایریاز میں پائے جاتے ہیں, جیسے بھورے ریچھ اور برفانی چیتے. بھورے ریچھ جو ہے یہ تو کسی وقت بلیک ڈائی لگا کے بھی پھر رہے ہوتے ہیں. اچھا گوگا جی, یہ جو کھانے ہیں, جب کھانوں کا ذکر کرتے ہیں تو 19-20 کے فرق کے ساتھ پاکستان کے مختلف علاقوں میں فرق ہوتے ہیں, نام بھی فرق ہوتے ہیں, لیکن تھوڑا ہی فرق ہوتا ہے, زیادہ فرق نہیں ہوتا. لیکن یہاں پہ جو کھانے ہیں نا اس علاقے کے, جو 3-4 ڈشز ہیں, وہ آل ٹوگیدر وہ فرق ہے, وہ بہت ڈیفرنٹ ہے. بلکہ وہ یوں کہنا چاہیے کہ چائنیز کوزین کے زیادہ قریب ہیں, کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ چائنا کے بھی قریب ہے. تو وہاں پہ ایک ڈش ہے بڑی پاپولر ہے, چپ شروع. پھر چپ شروع, ٹھیک ہے, چپ شروع
चप शुरू। चप समझते शुरू। एक पेचू है मतलब वो पेचू गर्म पानी में पहले घी को डाला जाता है, फिर बड़ा ही जबरदस्त मतलब एक सूप टाइप चीज बनती है, फिर उसमें अच्छा। रोटियां डाली जाती हैं, फिर इकट्ठे दोस्त बैठ के खाते हैं। फिर इसी तरह वहां पे डाउडो इसका तलफ़ुज़ डाउडो है, तो वो डाउडो जो है वो भी इंतहाई लजीज डिश है, मुझे वो भी खाने का इत्तेफाक हुआ। अच्छा, वहां पे हुंजा के इलाके में जबान जो बोली जाती है वो कहते हैं दुनिया की वाहिद जबान है जो किसी दूसरी जबान से नहीं निकली, ब्रुशिस्की। अब जो ब्रुशिस्की जबान है, ये तलफ़ुज़ जो ब्रुशिस्की है ये भी रशियन लगता है, तो वहां की जबान की ब्रुशिस्की है, इसका माखज़ जो है वो कोई दूसरी जबान नहीं है, ये अपने अंदर एक बिल्कुल अलग और यूनिक जबान है। अपनी इख्तरा हुई। हाँ, वो वहां पे और किसने जाना था वहां पे, मेरा ख्याल है बोलते होंगे लोग कि वो पहाड़ां नूं वज वज के जिहड़ी चीज वापस आंदी होगी उन्होंने क्या होने हुई है। और पहाड़ भी नांगा पर्वत केटू। नहीं, ये जो तुमने खुराक की बात की है ना, गोगा जी लवो फिर छुट्टियां। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। तुम्हारे 4 भट्टे हैं, तुमने मेरा ख्याल है कि लाखों की तादाद में ईंटें तैयार की हुई हैं और तुम जाहिर है करोड़ों रुपए कमाओगे। जनाब साहब जिद्दन मैं तानू डेरे ते खड़ के 2 देसी कुकड़ भुन के खवाए ना, तुसां कहना सरफराज तेरे वर्गा बंदा ही कोई। नाज़रीन, सर्दियों की आमद के साथ ही स्मॉग के बादल या खतरात मंडलाने लगते हैं, और स्मॉग की एक बड़ी वजह बयान की जाती है, वो है भट्टों से निकलने वाला धुआं। आज हमारे हस्बे हाल के कटहरे में खड़े हैं चौधरी सरफराज साहब, जो 4 भट्टों के मालिक हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जुनैद भाजी, ठीक ठाक हो? अल्लाह का शुक्र। ये देखें, बात ये है कि सबसे पहले तो जब भी स्मोक की या पोल्यूशन की बात होती है जी, तो सिर्फ भट्टे वालों की बात होती है, या उनको आप यहाँ कटहरे में खड़ा कर लेते हैं। कभी आपने दूसरे किसी फैक्ट्री वाले को यहाँ अपने कटहरे में पोल्यूशन पैदा करने के हवाले से या जुर्म में खड़ा नहीं ओ किया? भाई, भट्टा एक बड़ा जरिया है पोल्यूशन पैदा एक करने मिनट का। जुनैद साहब, मेरी अर्ज सुने। पूरे लाहौर में देखे कितने पट्टे हैं, इससे डबल सिर्फ एक इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री स्टेट हो बेशक, उसमें उससे ज्यादा डबल 4 गुना 5 गुना ज्यादा ओ मेरी फैक्ट्रियां बात होती। सुनो भाई, आपका 70% हिस्सा जो है आपकी लागत का वो ईंधन है, और जी। आप हमेशा अपनी लागत कम करने के लिए सस्ता ईंधन तलाश ओ करते हैं। जुनैद साहब, मैं तो मेरे 4 पट्टे हैं, मैंने तो चारों पे जिगजैग टेक्नोलॉजी लगवा ली पता है। मुझे zigzag होती क्या है? इन्हों कहते ने जिगजैग। सरफराज, तुमने जिगजैग किए यूं ऊपर की तरफ, तुम जरा अपने बाएं हाथ करके देखो जिगजैग, तुम्हें कानून की तपिश महसूस होगी। जुनैद साहब, इनके तो मैं साथ आया हूँ। साथ आया नहीं हूं, तुम इनके साथ मिले हुए हो। नहीं मिले नहीं हुए, ये भाइयां बाने। ये धुआं बंद करें यार, बड़ा नुकसान हो रहा है। ओ यार, बात तो मेरी पूरी सुन ले। मैं कहना ये चाहता हूँ कि हर दफा हर साल जब स्मोग पैदा होती है या ये पोल्यूशन का हर तरफ वावेला शुरू होता है, जी जी, तो खुदा के वास्ते और तरफ भी ध्यान दें। सिर्फ पट्टा मजदूर पट्टा 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 ही ना करते जाएं। ये सिर्फ पोल्यूशन ईंटों वाले पट्टे से ही पैदा नहीं होती, गाड़ियों की तरफ भी ध्यान दें और फैक्ट्रियों की तरफ भी ध्यान दें। ओ भाई, और भी 36 ऐसी चीजें हैं जिससे बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा है, पोल्यूशन पैदा हो। वो भी एक बड़ी वजह है, उन पर भी कंट्रोल किया जाना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ईंटों वाले भट्टे जो हैं वो जी। सबसे बड़ा जरिया है पोल्यूशन का धुआं पैदा करने का। सबसे बड़ा जरिया नहीं है, मैं यही तो कह रहा हूँ। एक दफा पट्टे पे शहबाज शरीफ ने हेलीकॉप्टर क्या उतारा है, सबकी नजर उधर ही पड़ गई हुई है। देखो, जब हुकूमत ने पाबंदी लगाई थी ना भट्टों पे स्मॉग के दिनों में, तो कंसिडरेबल फर्क पड़ा था। जी। मैं जाती तौर पे तो मैं कह रहा हूं कि मैं तो खुद ये चाहता हूं कि भट्टे सारे जो हैं वहां पे जिगजैग टेक्नोलॉजी आ जानी चाहिए, पोल्यूशन कम होनी चाहिए और बिल्कुल होनी चाहिए। मगर खुदा के वास्ते सिर्फ ये भट्टों की तरफ ध्यान न दें, दूसरी तरफ भी ध्यान दें। जो फैक्ट्रियां पोल्यूशन पैदा कर रही हैं, मैंने बहुत बहुत बड़ी फैक्ट्रियां देखी हैं, जो मुंजी की फक जो है वो जला के तो अपनी फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। तुम भी अपने भट्टों में पोल्ट्री फार्म से निकलने वाली तो जलाते हो। वो जनाब, मैं तो बता चुका हूं कि मैंने अब जिगजैग टेक्नोलॉजी अपना ली हुई है। बिल्कुल खत्म होना चाहिए। मैं कह रहा हूं, दोबारा कह रहा हूं कि बिल्कुल भट्टों में भी ये धुआं पैदा करने वाली टेक्नोलॉजी को खत्म होना चाहिए।
मगर खुदा के वास्ते दूसरी तरफ ध्यान दे, गाड़ियों में से धुआं, यहाँ पे कोई है सिस्टम ऐसा कि गाड़ियां चेक होती हों? हर साल गाड़ियां चेक करके हर मुल्क के अंदर सड़क पे चढ़ाते हैं। रक्शे आपके सामने धनाते फिर रहे हैं, वो थोड़ा धुआं छोड़ते हैं। ये सिर्फ पट्ठा 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 करके तो पट्ठा इंडस्ट्री का पट्ठा ना बैठा दें, ये आपके बहुत काम आ रहे हैं पट्ठा। अच्छा चलो, स्मॉग या धुएं के तो और भी जिम्मेदारान होंगे ना, लेकिन अपनी असल स्टोरी की तरफ आओ कि जैसे ही स्मॉग की वजह से भट्टे बंद करने की तैयारी की जाती है, पहले ही वाफिर मिकदार में अपना स्टॉक तैयार कर लेते हैं। अच्छा। और 2-3-4 हजार रुपए तक 20,000 ईंट ये इजाफा कर देते हैं। ये देखो तुम्हारे 4 भट्टे हैं, तुमने मेरा ख्याल है कि लाखों की तादाद में ईंटें तैयार की हुई हैं और तुम जाहिर है करोड़ों रुपया कमाओगे। जनाब साहब जिदन मैं तानू डेरे ते खड़ के 2 देसी कुकड़ भुन के खवाए ना, तुसा कहना सरफराज तेरे वर्गा बंदा ही कोई। तो आपके ख्याल से 4 भट्टे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। धुआं बंद करें, 4 दिन की जिंदगी है। क्या करें? और यार मैं तो वो कह चुका हूं, मैं तो भाई टेक्नोलॉजी बदल चुका हूं अपने पट्टों पे। जुनैद साहब, ये डिमांड एंड सप्लाई जो है ये तो पूरी दुनिया में हर कारोबार में मौजूद है। जब आपके पास डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम होती है तो जाहिर है रेट बढ़ता है। वो तो फिर जब आप पट्टे बंद करते हैं तो ईंटें कम पड़ जाती हैं, कारोबार काम जो है कंस्ट्रक्शन का उसी तरह चल रहा है, तो फिर जाहिर है पट्टे वाले जो है वो रेट बढ़ाबड़ू लेते हैं। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी से आखिर आप लोगों को एलर्जी क्या है? इस वक्त पूरे पंजाब में सिर्फ 3% भट्टे ऐसे हैं जो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल हुए हैं, सिर्फ 3%। सिर्फ 3। 100 में से 3। जुनैद साहब आपका ये सर्वे गलत है, 100 में से 4 तो मेरे हैं। 100 में से 4 नहीं है ना, तुम्हारे हजारों में से 4 है। और बाबूजी मैं यही कह रहा हूं कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये खत्म होना चाहिए। पोल्यूशन पैदा करने वाले, धुआं पैदा करने वाले, आबो हवा को जहरीला करने वाले जितने भी जराए हैं उनको बंद होना चाहिए, उन पे पाबंदी होनी चाहिए। मगर इक्वल जोर लगाएं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये ना करें कि जिस तरफ का मुंह हुआ है वही करते रहें। जो तगड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनको आपने इलेक्शनों में इस्तेमाल करना होता है, या जिन्होंने यूनियनें बना के तो आपके ऊपर बाकायदा प्रेशर डाला हुआ है, उनको आप पूछे ही ना। खुदा के वास्ते, चूंकि पट्टे वालों की इतनी तादाद नहीं है कि ये इलेक्शन पे असरअंदाज हो सके या इनकी सियासत पे या हुकूमत पे कोई असरअंदाज हो सके, इसलिए इनसे नहीं डरते। जाने दो यार, तुम लोग अपने अपने इलाकों में चौधरी और बादशाह बने होते हो। और दूसरी बात ये है कि हुकूमत का जहां जहां बस चलता है कि वो पोल्यूशन पे पाबंदी लगाए, वो लगाती है। सबसे बड़ा इल्जाम तुम लोगों पर यह है जो अभी तक नहीं धुल सका कि तुम लोग चाइल्ड लेबर करवाते हो। चाइल्ड लेबर भी और बॉन्डेड लेबर भी, खानदान के खानदान पुश्त दर पुश्त ये गुलाम बना लेते हैं। और जुनैद साहब ये चाइल्ड लेबर वाली जहां तक बात है ना, हमारे तो सारे बच्चे एचएसएन पढ़ते हैं। और भाई जिन बच्चों से तुम लेबर लेते हो, मजदूरी मुशक्कत करवाते हो, नहीं मेरे जुनैद साहब मेरे पट्टों में कोई ऐसा काम नहीं है। मैं अपने बच्चे कॉलेज जितने लोगों के बच्चे इट्टा थले। यार मैंने जिस दिन सुआ में दबा के मछली आपको दम पुख्त करके खिलाई ना, फिर आपको समझ आएगी। बड़ियां खादियां ने स्वाद विच दबियां मच्छियां। ओ भाई जी तुसी पट्ठे दी सुआ च दबी नहीं खादी, तुसी सादी सुआ च खादी है, बल्कि वो सुआ च खादी है ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। नहीं पट्ठे दे तुसी संदल दी लकड़ पाਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੀ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਧਮਾਲ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਇੱਕ ਸੰਦਲ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪੀਣਾ। याद है पट्ठे च कौन संदल दी लकड़ पांदा है? वो कहने का मतलब ये है जुनैद साहब कि आपको उधर बुला के किस दिन दावत तो हमें बहाना होता है यार, मुझे पता है आप खुद सारे खाते पीते लोग हैं। उधर आपकी किसी दिन दावत करके तो आपको दिखाता हूँ कि टेक्नोलॉजी है क्या। ये अपनी दावत अपने पास रखो और कानून का एहतराम करना सीखो। जुनैद भान जिदन मैं कुकड़ दी फोटो तो व्हाट्सएप की थी ना, तुसा कहना कल रख ले दावत। ऐडा होया जे कुकड़। दुनिया में लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अजीजी भाई ये साफ लिखा हुआ है कि कूड़ा फेंकना मना और हम लोग ही उसके नीचे ढेर लगा जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा फिर जहां जहां लिखा हुआ है ना कूड़ा फेंकना मना है, वहां तो लाजमन नीचे कूड़ा फेंका होता। ओ यार खुदा वास्ते जाने दो, फिर अगले उन्हें आके के कई दफा गाली गलोच लिखी होती है। बिल्कुल। अच्छा जी, ये आज कुछ बद तहजीबियां मैं करना चाह रहा हूं। ये जो साइन बोर्ड या कोई आप क्या
गाइड बोर्ड कह ले उसे, जो आपको बता रहे होते हैं किसी भी हवाले से, आपको हदायत दे रहे होते हैं Instructions, हाँ या जी। इंफॉर्मेशंस दे रहे होते हैं, जी जी तो उसको हम सरीहन नजरअंदाज कर देते हैं। अगर किसी पार्क के बाहर बोर्ड लगा हुआ है कि पार्क में जानवरों का दाखिला मना मना है, हाँ जी। तो आप ये ना अब कहें कि गोगा भी ओदे च घुस जाता है। ये है लाफ्टर। असल बात ये है कि फिर आपको अपना जानवर साथ लेके अंदर ना नहीं जाए, जाना बकरा चाहिए। शकरा, या आप अपना वो डॉग ना लेके जाएं, जी। उसको लाजमन फॉलो करना चाहिए, बिल्कुल। लाजमन। अगर कहीं लिखा हुआ है कि यहाँ पे पार्किंग मना है तो खुदा के वास्ते ना करें वहां पे ना, पार्क पार्किंग। ना ये करें। ख्याल मुझे इसी बात से आया है कि एक जगह पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे पार्क करना मना है, गेट के आगे, जी, गेट बंद ना गाड़ी, करें। हाँ जी। यहाँ से जनाजे गुजरते हैं, अंदर जाते हैं, तो वो जनाजा आपके भी किसी प्यारे का हो सकता है, इस तरह के लफ्ज भी लिखे हुए हैं। उसके बावजूद लोगों ने उस गेट के आगे मोटरसाइकिलें ये वो खड़ा किया हुआ। पार्क की हुई है। तो मैं हैरान हुआ, मैंने कहा यार देखें इतने सख्त अल्फाज और किस जगह पे ये बोर्ड लगा हुआ है, उसके बावजूद जरा भी किसी को ये परवाह नहीं एहसास है, नहीं है, हाँ। ख्याल नहीं है कि चलो यार ये वाली थान ही बख्श देंगे। वैसे तो मैं समझता हूँ कहीं किसी जगह पे भी अगर बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ हाँ पार्किंग जी। ना करें तो ना करें, हाँ, follow करें, ना हाँ। करें यार। उसको कोई तकलीफ होगी तो उस बेचारे ने लिखा है, अगर हाँ जी। प्राइवेट लिखा है तो अगर सरकारी तौर पे लिखा है तो वो तो बहुत तो जरूरी जरूरी है है, कि वहां पे हाँ। ना करें पार्किंग। फिर आपने ये भी अक्सर देखा होगा कि जहां पे पार्किंग की इजाजत है भी, जी वहां भी इंतहाई बेहंगम सी आप गाड़ियां और मोटरसाइकिलें खड़ी कर देते हैं, पार्क इस करते हैं। तरतीब के साथ, इस शेप में कि जहां पे 3 मोटरसाइकिल खड़े हैं ना, अगर हाँ वो हम जी। इंसानों की तरह प्यार से सोच समझ के लगाएं तो वहां पे कुछ नहीं तो 30 मोटरसाइकिल लग सकते हैं। मगर हमने वहां 3 खड़े करके तो निकल गए, हाँ। या वहां पे गाड़ियां 2-3 लग सकती। हाँ जी। अगर आप साथ साथ करके अपने मोटरसाइकिल खड़े करते हैं तो तरतीब जगह से, खाली हाँ। हो जाएगी, तो वहां पे कोई गाड़ी खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल। ये तरतीब हम बिल्कुल ही नहीं फॉलो करते। हाँ जी। अच्छा, इन बोर्डों के हवाले से ये एक और इंतहाई अहम बात तहजीबी जो पॉइंट आउट करने वाली है, जी जी वो ये है कि कहीं पे अगर साइन बोर्ड लगा हुआ है हाँ जी। कि अस्पताल आगे से दाएं तरफ है या फलां जो बाईं है तरफ है। दफ्तर वो बाएं तरफ है, तो आप उस बोर्ड के ऊपर अपना इश्तिहार लगा जाते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लाजमन आपको इस बात पे शर्म आनी चाहिए और एहसास होना चाहिए कि ये लोगों को बताने के लिए ये बोर्ड लगाया लगा गया हुआ है। हाँ जी। इसको नजर आना चाहिए बिल्कुल सही। लोगों को, हाँ। मैं अपना जो मामूली सा एक इश्तिहार जो कुछ दिनों के लिए लगाया जाना है वो हाँ लगा के जी। तो मैं बोर्ड का बेड़ा गर्क कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्यों? हाँ फिर अक्सर आपने ये भी देखा होगा कि बोर्ड अगर कहीं पे लगा हुआ है जी जी तो उसको हमें अपना फिका सा को फजूल सा लाफ्टर की लेने के लिए या शरारत के लिए उसमें से कोई एक आध लफ्ज मिटा दिया जाता है, जिससे वो कोई और दूसरा लफ्ज बन लफ्ज जाता है, बन उसके जाता है। मानी बदल जाते कुछ और हो जाता है। अजीजी भाई ये साफ लिखा हुआ है कि कूड़ा फेंकना मना और हम लोग ही उसके नीचे ढेर लगा जाते हैं। हाँ। बिल्कुल। अच्छा, फिर जहां जहां लिखा हुआ है ना कूड़ा फेंकना मना है, जी। वहां तो लाजमन नीचे लाजमन। कूड़ा फेंका होता है। हाँ ओ यार खुदा वास्ते जाने दो। फिर अगले उन्हें आके के कई दफा गाली गलोच लिखी होती हाँ है, ये जी, बिल्कुल सही है। दीवारों पे। या कूड़े फेंकने वाले की ऐसी की तैसी, यहाँ कूड़ा वो फेंक रहा है, फलां फेंक रहा है, उसके बावजूद लोग फेंकते हैं, नहीं बाज आते। बाज नहीं आते। ये इंतहाई दुख वाली और शर्म वाली बुरी बात। बिल्कुल। एक बात तहजीब भी है जो बोर्ड आवेजा करने वालों की तरफ से भी की जाती है। जी। अक्सर मैंने देखा है कि ट्रैफिक सिग्नल्स के सामने यानी ट्रैफिक सिग्नल को कवर कर देते हैं तशहीरी बोर्ड जो है। यार अजीजी किसी किसी बोर्ड पे इतनी खूबसूरत लड़की बनी होती है लेकिन ऊपर स्याही की पिचकारी फेंक देते हैं। अब वहां पे अगले दिन कॉलेज आके फूल रखा था और लड़की घूर के देखती है तस्वीर में से। नहीं, वो मॉडल की बजाय गौरी लगना शुरू हो जाती है। नाज़रीन, ये था आज का इस्तेहाल और आज की छोटी सी बात ये कि राब्ता और ताल्लुक हमेशा बरकरार रखें, क्योंकि ईंट से ईंट का जोड़ खत्म हो जाए तो इमारतें गिरने लगती हैं। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।